Hello everyone, this is Shatrupa and last class we had seen efficiency of data structure, right? So those of you who haven't learned what is efficiency of data structure, please go back to the previous video and have a look and then get back here. So last class हमने ये देखा था कि how to actually measure the efficiency of data structure and finally हमने ये conclude किया था कि it's not required to know the exact time complexity of a data structure, rather we can just know the approximate or kind of time complexity that will well fit in my current need, right? And we are not bothered about space complexity because हमारे पास space बहुत ज़्यादा है पर time किसी के पास नहीं है. And finally we concluded from there that we have to know something that is known as asymptotic notations, right? So now these asymptotic notation does what? These asymptotic notation give us the approximate टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट, ठीक है, कि लगभग दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड, ठीक है. एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस नोटेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: द बेस्ट केस, द एवरेज केस एंड द वर्स्ट केस. ओके, सो स्टार्ट ऑफ विथ वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्स्ट केस. क्यों? बिकॉज बेस्ट केस है तो वेरी गुड, पर अगर वर्स्ट केस है सो वी ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस. सो इसीलिए वी मेजरली विल फोकस ऑन द वर्स्ट केस, ठीक है. बट बिफोर मूविंग अहेड टू व्हाट इज दिस वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस, लेट्स लिसन टू दिस एग्जाम्पल. तो यहाँ पे आप दो दोस्त देख सकते हो, दो दोस्त के घर हैं, एक है राहुल और एक है रोहन. नाउ दिस रोहन ही इज अ गेम फ्रीक, उसके पास बहुत सारे गेम्स हैं, राइट? पर जो राहुल है ही जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई आउट सम गेम्स. ओके, तो उसने दो काम किए. उसने बोला कि चल भाई तू मेरे को एक गेम दे तो छोटा सा हो, विच इज लेस इन स्पेस एंड इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड ओवर इंटरनेट. सपोज 250 KB. अगर 250 KB का कोई गेम है तो वो तो ईमेल पे भी आ जाएगा, राइट? सो ही डिसाइडेड टू शेयर इट ओवर internet. Now you look into this first algo. It says suppose the size of the game is 250 KB. Just imagine, okay? So you can simply share it over internet, right? So what is the total time that will be taken to share it through internet? So total time, suppose n, it will be given as L1. Suppose what is L1? L1 is nothing but the time that will be taken to find out. Suppose he needs to find out which game is 250 KB, right? So he found out a game. So that is, say, suppose L1. Now what is this n by L2? You have to find the time. So time is nothing but speed upon distance, right? So suppose the speed of the internet is n, right? And distance is L2. That is the time, the total distance it has to cover in order to go from the laptop of Rohan to the laptop of Rahul, right? So here if you consider L1 plus n upon L2, right? Suppose this. Now this is what? This is the time that is required to find the game. Okay, and this is what? This is normal. This is the time to transfer the data, right? This is the transferring the data. So this is the total time that will be required by this algo where he has to share a game of size 250 KB, right? Now L1. So with L1, do we have any n constant attached? Is the like the time that will be required to find the game will always be the same, right? Because it will always be a constant, क्योंकि वो जब भी गेम ढूंढेगा 250 KB का, वो उसको उतना ही टाइम लगेगा, right? So whatever games he get, it will be of constant. So if I put here n to the power 0, isn't this a constant? Why? Because anything to the power 0 is always 1. So L1 into n to the power 0. Let's consider this like this. Plus, this is n into, suppose, let's consider 1 by L2 as L2 dash. Okay, let's consider this. Okay, let's consider this as L2 dash. So what it will be? It will be L1 n0 plus L2 dash by n, right? Here what is the value of n? Value of n is 1. So n to the power 1 is what? N to the power 1 is of course
n. Anything to the raised to the power 1 is that same number, right? 2 to the power 1 is nothing but 2. The same thing over here, okay? One thing that I have considered is 1 by L2 into n. This is the scene, right? So I have considered this as n into L2 dash. L2 dash, ठीक है? मैंने इस 1 by L2 को L2 dash consider किया है, ठीक है? L2 dash. But what is n? n is still raised to the power 1, right? तो इसीलिए ये L1 plus L2 n, right? This is what? This is nothing but 1. That is what we know. Anything raised to the power 0 is equal to 1. Anything, right? कुछ भी. So even n raised to the power 0 is also 1. So we can ignore that. We can simply write L1. So L1 plus L2 और ये n, right? Now tell me which one has the highest value of n? Of course this term has the highest value of n. इसका मतलब जो टाइम है, जो टाइम विल बी टेकन फॉर द ट्रांसफर ऑफ दैट गेम फ्रॉम रोहन्स हाउस टू राहुल्स हाउस, तो वो किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा? वो इस n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, राइट? सो व्हाट विल बी द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? This will depend directly on this n, right? This n. So what will you write? You will simply write it as a capital O and n. Now what is this capital O? This is nothing but big O. Okay? So this is the worst case. Big O is generally the worst case. ठीक है? So we'll see this in further detail कि कैसे, क्यों big O is the worst case, how to find out big O being the worst case. So this is a very small example. Suppose उसको 250 KB का कोई एक गेम ट्रांसफर कराना है, तो उसको टाइम कहाँ लगेगा? टाइम उसको वहीं लगेगा जहाँ पे उसके स्पीड ऑफ इंटरनेट विल डिपेंड. दिस n इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द इंटरनेट. अब उसका इंटरनेट स्लो है, उसका इंटरनेट बहुत फास्ट है, या सपोज वो जियो यूज कर रहा है, मोबाइल हॉटस्पॉट यूज कर रहा है टू ट्रांसफर दिस डेटा, देन इट इज गोइंग टू बी रियली रियली स्लो. अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा, राइट? एंड या ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द कंजेशन ओवर द राउटर एंड ओवर एवरीथिंग एल्स, ठीक है? तो ये जो n है ये हमेशा वैरी करेगा. तो उस हिसाब से ये जो एल्गोरिदम बनेगा, तो ये पूरा जो टाइम टेकन टू ट्रांसफर इट फ्रॉम रोहन्स हाउस टू राहुल्स हाउस किस पे डिपेंड करेगा? वो इसी n पे डिपेंड करेगा, राइट? सो अगर इसी n पे डिपेंड करेगा तो हमारा एल्गोरिदम क्या बनता है? बिकॉज द टाइम टू फाइंड द गेम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है? टाइम टू फाइंड द गेम इज कॉन्स्टेंट, सो वो L1 ले लो, राइट? n इज द ओनली फैक्टर दैट इज गोइंग टू वैरी. Since this is going to vary, तो हाईएस्ट फैक्टर और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कहाँ पे है? यहाँ पे है, इस टर्म में, जहाँ पे वो डेटा के स्पीड के ऊपर, इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? सो ये बन जाएगा इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा? कौन से वैल्यू पे? इस वैल्यू पे, राइट? इन लास्ट क्लास वी हैव ऑल्सो रेड कि अगर साइज बहुत बड़ा है तो डेटा ट्रांसफर का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, राइट? अगर ये 250 KB के जगह पे 650 MB होता, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफरिंग इट ओवर इंटरनेट वुड हैव मेड इट रियली रियली स्लो, बहुत टाइम लगता, राइट? बट फिर भी इवन इफ यू ट्राई टू ट्रांसफर तो उसको ज़्यादा टाइम लगता, तो तब ये n क्या होता? n और भी ज़्यादा होता, राइट? n वुड हैव बीन इवन हायर. सो ये जो गेम को अगर आप ट्रांसफर करोगे थ्रू इंटरनेट, सो ऑन व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडिंग? The time complexity will of course depend upon the speed of the internet, right? So if the speed of the internet is n, then the time complexity of that will of course be n. What is this big O? Forget it for now, ठीक है? Big O of n होता, ठीक है? Big O हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, but just remember it would have been big O of n. Now suppose I have to transfer. अब राहुल को लगा कि नो, ये छोटे मोटे गेम से मेरा कुछ नहीं होने वाला, I want a big game. Now he wanted to transfer, imagine a game of 60 GB. अब उस चीज़ को वो इंटरनेट के थ्रू नहीं भेज सकता, रोहन कैन नॉट सेंड इट. तो रोहन क्या बोलेगा? भाई तू मेरे घर आ, ब्रिंग अ हार्ड डिस्क एंड ट्रांसफर द डेटा एंड टेक इट बैक विथ यू, राइट? बोलेगा चलो ठीक है. तो अब राहुल स्टार्टिंग से what will he do? He'll first get ready, right? Suppose that takes K1 amount of time. He got ready. Then what will he do? He'll take his bike, car, auto, taxi, whatever it is. That takes K2 amount of time, right?
He reached his home. He decided which game to take of 60 GB. Suppose that takes K4 amount of time, K3 amount of time, and then he'll return back to his home. Suppose that takes K4 amount of time. अब आप लोग बोलोगे इसने तो डेटा कॉपी ही नहीं किया. Imagine how much time does it actually takes to copy data. This is nothing. This is negligible. ठीक है, ये एक negligible amount of time लेता है to copy data from system to hard disk, right? So compared to all this thing, copying takes zero amount of time almost. ठीक है, so we can just simply ignore this copying time. तो हमारा हर चीज किस पे डिपेंड करेगा, इसी चीज पे, राइट? सो अगर वो K1 अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है रेडी होने के लिए, तो उस K1 अमाउंट ऑफ टाइम से उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कभी भी रेडी होने के लिए. सो योर K1 इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. आपको अगर कोई बोलता है कि जाओ जाके रेडी हो जाओ, so if you take 5 minutes to get ready, you will always take 5 minutes to get ready, right? Now you have to take a bike and go to his house. That will also take constant amount of time. ऐसा तो नहीं कि आज रोहन का घर 5 किलोमीटर दूर है और कल अगर जाओगे तो 10 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएगा. So that is also constant, right? अब आप वहाँ पे गए, उससे बात किए, you decided the game which one to take. That will also take a fixed amount of time. It will not vary with days and years, right? कि अरे मैंने लीप ईयर में मैं गई हूँ तो I will take less time. If it's not a leap year, I'll take more time to talk and discuss. No, right? And again, returning back home will of course take the same amount of time. क्यों? क्योंकि अगर 5 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर मैं 5 किलोमीटर गई हूँ तो मेरे को 5 किलोमीटर वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, right? Ignoring all the external factors like traffic, climate, weather, and copying the data into the hard disk. ठीक है, those are negligible. We don't consider any external factor while calculating the algorithm का time complexity. ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें देखोगे तो they are all constant. वो एक fixed amount of time लेगा, right? That means क्या? K1 n to the power 0 plus K2 n to the power 0 plus K3 n to the power 0 plus K4 n to the power 0. Now n to the power 0 क्या होता है? Anything raised to the power 0 is 1. So it will be K1 plus K2 plus K3 K4, right? Like this. इसका मतलब आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वैल्यू पे, राइट? n to the power 0 वैल्यू पे. That means big O of n to the power 0. अब n to the power 0 क्या होता है? 1 होता है. तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा, big O of 1, राइट? अब अगर आपको बोला जाए कि विच वॉज बेटर, कि उसने 250 KB का लेके पहले खेला वो अच्छा था या 60 GB का गेम लेके खेला वो अच्छा था, ऑफ कोर्स अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रही हूँ तो 60 GB का गेम लेके खेलना इज़ फार मच बेटर. क्यों? क्योंकि इधर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इट इज़ द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज़ बिग O of 1, राइट? That is the best time complexity. यहाँ पे तो big O of n है, मतलब इसमें जब स्पीड कम होगा तो वो डेटा कम ट्रांसफ़र होगा, सही से नहीं होगा, it might take a time, तो it will depend on the value of n. But here in this algorithm, entire thing is constant. वो एक fixed amount of time ही लेगा. The flight from Mumbai to Delhi takes 2 hours 50 minutes, then it is going to take 2 hours 50 minutes. If I exclude all the external factors affecting it. ठीक है, मैं turbulence consider नहीं कर रही, मैं heavy rain consider नहीं कर रही हूँ, I'm not considering, it's a very perfect day, then the flight is going to take exactly 2 hours 50 minutes. उससे ज़्यादा टाइम वो नहीं ले सकता. तो that is the best option, right? Rather than me choosing a train which is first of all not a super fast. वो डिपेंड करता है कि ट्रेन का क्लियरेंस रोड में है या नहीं, ट्रैक में है या नहीं, या सपोज आई गो बाय अ बस, सो ऑफकोर्स माई टाइम फैक्टर विल डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, राइट? पर अगर मेरे को एप्ट टाइम पे पहुंचना है, आई हैव टू रीच देयर, देन व्हाट इज द बेस्ट वे? आई कैन टेक अ फ्लाइट बिकॉज आई नो इट विल मेक श्योर दैट आई रीच विद इन 2 hours 50 minutes, राइट? सो यहाँ पे जहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट हो जाता है, दैट इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और ये हमेशा हम लोग बिग O में क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 केसेस होते हैं. एक होता है बिग थीटा, एक होता है बिग ओमेगा और एक होता है बिग O.
बिग थीटा एंड बिग ओमेगा दे आर एवरेज एंड द बेस्ट केस, जिसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे. वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, क्योंकि अगर बेस्ट केस है तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है. व्हाट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड? आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस. तो वर्स्ट केस हमको कौन बताता है? हमें वर्स्ट केस बिग ओ नोटेशंस बताते हैं. थ्रू द बिग ओ नोटेशन हमें ये समझ में आता है कि इस लिमिट के बाहर इट विल नेवर गो. सपोज दैट फ्लाइट, वो फ्लाइट 2 घंटा 50 मिनट से ज़्यादा ले ही नहीं सकता. वो उसी टाइम के अंदर मेरे को दिल्ली में लैंड कराएगा फॉर श्योर, राइट? सो इट विल नेवर टेक मोर देन दैट. सो बिग ओ सेट्स अस और प्रिपेयर्स अस फॉर द वर्स्ट केस कि देखो ये आपका कोड है एंड इस कोड के हिसाब से ये आपकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यस, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब आपका जो ये कोड है ये इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कभी एक्सीड करेगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बैक, जैसे कि यहाँ पे ये बिग ओ एन है. मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लो, you take any value of n, it will still be n only. वो linearly ही increase करेगा. it will not become exponential. n square नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है? it will always remain linear, right? similarly यहाँ पे जो था ये constant था. कोई भी value ले लो, कुछ भी कर लो यार, उसको जितना टाइम रेडी होने में चाहिए वो टाइम, and that is a constant time. so this will always remain constant. तो वर्स्ट केस का बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई पूछे तो क्या है, तो वो बिग ओ ऑफ 1 है, राइट? द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सा है? दैट इज बिग ओ ऑफ 1 विच इज कॉन्स्टेंट, ठीक है? इट विल इम्प्रूव, कॉन्स्टेंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट? तो ये बिग ओ नोटेशन बोलता क्या है? व्हाट डज दिस बिग ओ नोटेशन से? बिग ओ नोटेशन सेज एनी फंक्शन एफ एन is said to be big O of Gn, said to be big O of Gn if and only if there exists a constant C and n naught such that 0 less than equal to Fn less than equal to C into G of n for all n greater than equal to n naught. अब what did I just say? ठीक है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बोला. इफ़ यू रियली क्लियरली लुक इनटू दिस स्टेटमेंट, सिंपली एक ही चीज़ बोल रहा है कि एफ एन हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन ज़ीरो. मतलब यहाँ पे आपको दो वैल्यू चाहिए, एक इसका और एक एन नॉट का, राइट? तब भी आप बोल सकते हो कि एफ एन इज इन बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, राइट? तो ये हमको कैसे हम निकाल सकते हैं? तो हमको कोई एक ऐसा सी का वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा जिसके वजह से ये वैल्यू हमेशा लेस होगा कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ सी जी एन, राइट? You have to consider such a value of C for which always the value of Fn will be less than equal to Cgn, right? चलो देखते हैं how. For example, this code, your Fn is given to be n cube plus 1 and Gn is equal to n to the power 4. इसका मतलब कैसे करेंगे? n क्यूब प्लस 1 लेस देन इक्वल टू n टू द पावर 4. आप इसके पहले 0 लिखो ना लिखो, इट्स ऑल ओके, ऑल गुड, ठीक है? अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट हियर Cgn, राइट? दिस इज Gn इनटू C. सो लेट्स कंसिडर C वैल्यू टू बी 1. ओके, जस्ट चेक करते हैं. C का वैल्यू n 1 लेते हैं. n नॉट मतलब एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है? एनी वैल्यू ऑफ n विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय n नॉट. तो n नॉट का वैल्यू सपोज 2 लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग 2 डालेंगे. 2 टू द पावर 3 इज 8 प्लस 1 एंड दिस इज लेस देन 1 इंटू 2 टू द पावर 4. सो दिस इज 9 लेस देन इक्वल टू 16. ये सही है, इट्स ट्रू, राइट? इसका मतलब जब c इज इक्वल टू 1 होगा एंड n नॉट का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, then your Fn
fn is big O of gn. इसका मतलब n cube plus 1 is nothing but big O of n to the power 4. This is your answer. So what is the time complexity? It is n to the power 4. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अब अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे, डोंट यू सी कि ये इज नथिंग बट n square into 2, right, or plus 2 if whatever you consider, right? So ये अगर ऐसा है तो big O of n square मैं कंसिडर कर सकती हूँ इसको, right? This question is really simple. You have to just find out two numbers, one is c and other is n naught, जिसके वजह से ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. fn लेस देन इक्वल टू cgn, अगर ये ट्रू हो रहा है then for any number that is greater than equal to this value of n naught, this will be true. Now let's substitute. Suppose मैं n naught का वैल्यू 3 ले रही हूँ, 2 से कोई भी नंबर बड़ा होगा तो ये वैल्यू सही होगा, राइट? सो 3 क्यूब प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 to the power 4, right? So this will be your 27 plus 1, that is 28, and this will be 27 into 3, right? So which will be your 1, and this will be 6 plus 2, that is 8, right? So for any number, your c is your constant, we have taken c to be 1, ठीक है? For any value मतलब n naught is equal to 2 से शुरू करके उसके बाद आप infinity तक चले जाओ, कोई भी नंबर, this condition will always be true. So that means your fn is equal to big O of gn. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सा होता है? ये big O of gn. Your gn is the time complexity. ठीक है? So this is how you actually get to know is it there or not. तो आपको कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा. अगर ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है then that fn is not in a big O of gn, मतलब वो कुछ और है, okay? It's something else. What it is we'll see later. But वो big O तो नहीं है, right? But if you get any number of n and c such that fn is less than equal to cgn, then that statement is said to be in big O of gn. ठीक है? Very simple. Now next एक example देखते हैं. For example यहाँ पे दिया गया है 4n plus 3. Okay, we have to check whether this is in the big O of gn. gn क्या है? gn is only n, right? So इसका मतलब 4n plus 3 less than equal to n, right? So cgn, so into c, so what will you consider the value of c? Suppose the value of c is 5. Let's take the value of c to be 5, ठीक है? And let's consider the value, okay fine, let's consider c to be 5 and we'll find the value of n, ठीक है? Both are in same proportion, so ठीक है, 4n plus 3 less than equal to 5n, right? Now so 3 less than equal to 5n minus 4n, so what is it? It is 3 less than equal to n, right? Or n greater than equal to 3, right? So any value of n naught that is greater than equal to 3 will satisfy this condition. ठीक है? Let's try. ठीक है? Suppose I am taking 4 into, let's consider 3 only, ठीक है? Plus 3 is equal to 5 into 3. क्या ये true है? So 12 plus 3 is 15 less than equal to 15. So this is true. अब let's consider n naught is equal to 4. 4 into 4 plus 3 less than equal to 5 into 4, right? So 16 plus 3 is 19 less than equal to 20. This is also true. इसका मतलब we have to find a value of c and a value of n such that both when together placed fn is always less than cgn. अगर ये condition satisfy होता है इसका मतलब fn is equal to big O of gn. Clear? अब
देखो यहाँ पे क्या टर्म आया, हाउ डिड आई कंक्लूड दैट इट इज बिग O ऑफ n? सिंपल, मेरा gn जो होता है वही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, दैट इज माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ gn। इसका मतलब अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है कि fn इज लेस देन इक्वल टू cgn, if this becomes true, then what is my time complexity? My time complexity is nothing but this big O of whatever my gn is. So what is the gn over here? Gn is n. So what is the time complexity of 4n plus 3? The time complexity of 4n plus 3 is nothing but big O of gn, that is big O of n. Clear? Now look into this table. तो आपको लगता होगा कि हाउ डू वी गेट दीज वैल्यूज, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। नो, सिंपली सब्स्टिट्यूट। जब n का वैल्यू 1 है तब देखोगे तो fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू gn, तो n0 कैन नॉट बी 1। अब अगर 2 पे जाओगे, n0 का वैल्यू 2 करोगे तो अगेन fn इज ग्रेटर देन gn, तब भी नहीं हो सकता। अब अगर n का वैल्यू आप 3 करते हो तो 15 हो गया, लेस देन इक्वल टू है तो इट्स इक्वल, सो वेरी गुड। अब अगर 4 ट्राई करोगे तो हमने ट्राई करके देखा था 19 और 20 आ रहा है, तो अगेन इट्स लेस देन gn। इसका मतलब फ्रॉम 3, n0 फ्रॉम 3, ओके, एंड c वैल्यू अगेन यू हैव टू कंसिडर साइमल्टेनियसली लाइक दैट वे कि c वैल्यू हैज टू बी सच दैट दीज टू व्हेन पुट टुगेदर fn का वैल्यू हमेशा gn के वैल्यू से लेस या फिर इक्वल होगा, राइट। दिस इज द टेबल दैट आई हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड टू शो यू कि एक्चुअली ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे वैल्यूज आएंगे जहाँ पे fn का वैल्यू ग्रेटर देन होगा gn से, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगा, आएगा, लाइक हियर इन दीज केसेस। ठीक है, तो उस वैल्यू को हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें कहाँ से कंसिडर करना है, उसके बाद वाले वैल्यू से, जहाँ से fn विल ईदर बी इक्वल और इट विल बी लेस देन cgn। ठीक है, मूविंग अहेड विथ अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 5n स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, सो वील कंसिडर, से सपोज आर c वैल्यू, लेट्स टेक इट टू बी 6। ठीक है, सो 5n स्क्वायर प्लस 4, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम n0 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इज लेस देन इक्वल टू 6n स्क्वायर। ठीक है, cgn होता है तो 6n स्क्वायर। So now 4 is less than equal to n square, of course this will go here, right? So your n is how much? N is greater than equal, let's consider this way. So this implies that n square is greater than equal to 4. So n will be greater than equal to 2, right? इसका मतलब n0 का वैल्यू आप 2 से ऊपर कुछ भी रख लो, 2 and above 2, it is going to satisfy this condition. इसका मतलब your c value is 6 and n0 is greater than equal to 2 for all the condition, all the number that is greater than equal to 2 and where your c value is 6, this function fn is in big O of gn। अब बताओ कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इस फंक्शन का। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी सिंपल, अगेन बिग O of gn क्या है, n स्क्वायर, राइट। इसका मतलब इसका जो ग्रोथ होगा वो पावर 2 में होगा, इट विल हैव एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट केसेस ऑफ बिग O। ठीक है, ये बिग O का भी वर्स्ट केस है, दिस इज द वर्स्ट केस। हम इस केस में किसी भी कोड को नहीं रखते, ओके, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है यार फंक्शन का, तो उस स्टेट में हम नहीं छोड़ सकते उस कोड को, ये बहुत ही ख़राब कोड होता है, राइट। तो अच्छा कोड कौन सा होता है, ऑफ कोर्स बिग O ऑफ 1 अच्छा कोड होता है, बिग O ऑफ n log n अच्छा होता है, बिग O ऑफ n भी सही है, ठीक है, चल जाता है। ठीक है, तो ये n log n ये हमको कैसे पता चलेगा, हाउ विल वी गेट टू नो। ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन से आप कैसे c और n0 निकालोगे, लेकिन आपको कोड से कैसे पता चलेगा। सो फॉर दैट लेट्स कंसिडर अ वेरी सिंपल कोड जो है टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सपोज ये कोड आपने लिखा है, राइट, आई हैव रिटन दिस कोड इन C, और ये कोड मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल कोड है, राइट। नाउ हियर आई हैव टेकन एन इंटीजर I,
sum which is initialized to 0. So sum क्या calculate करेगा? Of course sum calculate करेगा sum को which is of the first n natural numbers, right? And I've taken a value n. तो मैं input ले रही हूँ from the user. I'm taking the input from the user that you have to assign me the value of n. कि आपको कौन से number, what is the value of n? Which first element do you use? Is it 50, 100, 1000, 10,000? What it is, right? So that n is done over here. Now I'm running a loop. I'm running a loop from. Okay, I'm really sorry. यहाँ पे एक code में error है. This should not come over here. This will come over here. Just understand that. ठीक है, ये वाला bracket will come after this. ठीक है, sorry for this. So now I'm considering a loop which is I is equal to 1 and I less than equal to n. तो n time वो loop चलेगा and क्या print करेगा? वो simply sum print करता जाएगा. Okay, this is a very simple code. Now if you see ये line कितनी बार execute होगा? One time. ये line कितनी बार execute होगा? One time. How many times will this be executed? This will be executed n times. How many times will this be executed? This will be executed one time, right? Now, and this will also be executed one time. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे if you see it is n plus 4, right? इसका मतलब your fn is what? Your fn is n plus 4 and what is your g of n? G of n is n. Right? Your n fn is n plus 4 and g of n is equal to n. Right? Now let's check whether this is in big O of gn or not. Right? So this is the case, right? N plus 4 and g of n is your n. Now is fn is equal to big O of gn? तो कैसे पता चलेगा? हम इसको solve करते हैं. ठीक है, how will we solve? Suppose let's get back here, n plus 4 less than equal to n, right? So we have to satisfy this. So what is the condition to satisfy? We have to multiply c into this. So let's consider c value as 2, right? So n plus 4 less than equal to 2n, right? So 4 less than equal to n or n is greater than equal to 4. क्या मतलब है इसका? मतलब for any value of c that is 2 and for any value of n naught that is greater than equal to 4, this function fn is in big O of gn. So अगर ये मेरा fn है और ये मेरा g of n है तो fn is equal to big O of gn for all n naught which is greater than equal to 4 and c equal to 2. ठीक है, तो इस फंक्शन का, इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा? fn is equal to big of gn. gn क्या है? gn is nothing but n. So the time complexity of this code is simple, it is n. अब अगर एक और चीज़ याद रखो, अगर सारे लाइन कांस्टेंट है, एक एक बार ही प्रिंट हो रहे हैं, तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा जिसमें n का इनपुट होगा. तो n का इनपुट कहाँ है? लूप में है, राइट? So and how many times is the loop running? It's just running n number of times. तो अगर n number of times run कर रहा है तो इस कोड का complexity क्या होगा? Big O of n होगा, right? Big O of n होगा. ओके, यहाँ पे सम का कोड नहीं लिखा है, यहाँ पे सम का कोड भी होना चाहिए, पर ठीक है, you understand, you need to find the sum of that number, right? So whenever there is a function like this, n plus 4 and g of n is equal to n, you have to find any constant c और उसके बाद आप n नॉट का वैल्यू निकालो. अगर आपको ऐसा मिल रहा है इस कॉम्बिनेशन में कि हाँ बोथ आर बीइंग सेटिस्फाइड, तो योर fn इज नथिंग बट बिग O ऑफ gn. तो gn के फंक्शन में जो भी लिखा है उसको बिग O में डाल दो, दैट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंस इट इज n, इट इज नोन एज द लीनियर ग्रोथ. It is what? It is known as linear growth. ठीक है? Now, moving ahead, ये कोड आपने लिखा था, ठीक है, जहाँ पे आपने यूजर से इनपुट लिया. Now, this code is another code where you're taking user input,
पर आप सम का कोई कोड नहीं रन कर रहे हो, कोई लूप नहीं रन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला सेज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2, राइट? तो मैंने यहाँ पे n का एक वैल्यू इनपुट लिया एंड मैंने इसको इधर से प्रिंट करवा दिया। सो दिस विल रन वंस, दिस विल रन वंस, दिस लाइन विल रन वंस, दिस लाइन विल रन वंस। तो ये जो पूरा मेरा चीज़ है, हर चीज़ एक एक बार रन कर रहा है। सो व्हाट विल बी माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि हर लाइन एक एक बार रन कर रहा है, हर लाइन एक कांस्टेंट टाइम के लिए रन करेगा, राइट? सो व्हाट विल बी माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ 1। इसके पहले केस में हमको क्या मिला था? बिग ऑफ n। क्यों? क्योंकि हमने फॉर लूप यूज़ किया था, राइट? यहाँ पे कोई लूपिंग नहीं है। दो देयर इज अ यूजर इनपुट, देयर इज नो लूपिंग। ऐसा नहीं है कि मैं उसका वैल्यू डिफाइन कर रही हूँ। देयर इज यूजर इनपुट, आप डिफाइन करोगे। द कोडर, द यूजर ऑफ दैट कोड विल डिफाइन द थिंग, बट योर कोड इज रिटन सच एफिशिएंटली कि फिर भी आपका बिग ऑफ 1 आ रहा है, बिग ऑफ n नहीं, राइट? सो यू सी big O, fn is equal to 4, right? वो 4 लाइन, that's a constant line and that will be executed. अब मेरे को satisfy करना है fn less than equal to gn। अगर ये हो गया then it is correct, मेरा कोड बहुत सही है, right? So कैसे हम लोग करेंगे? Let's see, fn less than equal to cgn. What is the value of fn? 4 less than equal to gn क्या है? 1। Suppose c का वैल्यू मैं क्या लेती हूँ? मैं सपोज 5 लेती हूँ। लेट्स टेक 5, राइट? इफ वी टेक 5, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 हमेशा, राइट? इवन इफ आई कंसिडर हियर 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आपको कोई एक ऐसा c का वैल्यू निकालना है, मे दैट बी 4 और मे दैट बी 5। यहाँ पे मैंने 5 कंसिडर किया है, आप उसको 4 भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज इट इज इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ठीक है? तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ fn और of fn such that c and n naught is greater than equal to the exact value of n naught, तभी जाके you call this function fn in g big O of gn। तो इसका मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 4 इज ट्रू, 4 लेस देन इक्वल टू 5 इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब यू कंसिडर c टू बी 5 और यू कंसिडर c टू बी 4, डजेंट मैटर, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो योर fn इज ऑफ कोर्स इक्वल टू बिग O ऑफ gn। अब gn क्या है? gn इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट 1। तो इसका मतलब fn जो हुआ, जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थ्रो करेगा दिस कोड, इट विल गिव यू एज fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ 1, राइट? तो अगर अभी कोई मेरे से पूछे देन विच इज अ बेटर कोड टू राइट, वो फॉर लूप वाला या ये वाला? अरे दोनों में ही आप यूजर इनपुट ले रहे हो, राइट? और जब ये कोड आपको कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, इट इज गिविंग यू अ कांस्टेंट ग्रोथ, तो फिर आप क्यों एक लीनियर ग्रोथ के लिए जाना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर अ लीनियर ग्रोथ, राइट? इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो ऑफ कोर्स दिस कोड इज बेटर देन द कोड जिसमें हमने फॉर लूप लिया था, ओके? क्यों? क्योंकि इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज constant, it has having a constant growth, while the one that had for loop उसमें linear growth था, right? So that is not a good idea. So अगर आप ये ग्राफ देखोगे, so what does big O says? Big O says कि big O will give you the least upper bound. Least upper bound मतलब the maximum level up to which your fn can increase, उसके बाद fn increase ही नहीं करेगा, ठीक है? वो worst case देता है। So देखो, ये fn का ब्लैक लाइन है एंड gn का ब्लू लाइन है। सो fn स्टार्ट्स इंक्रीजिंग लाइक दिस एंड gn गोज अबव दैट, ठीक है? तो ये जो लेवल है जहाँ पे fn इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद fn इंक्रीज नहीं करेगा, इट कैन नॉट रीच दिस गैप विल बी मेंटेन, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू योर gn, ठीक है? इसका मतलब एक पॉइंट तक ना fn ज़्यादा होता है, gn कम होता है। एक पॉइंट में दोनों इक्वल हो जाते हैं और फिर gn बढ़ जाता है। तो हमको कौन से पॉइंट से कंसिडर करना है? उस पॉइंट से कंसिडर करना है जहाँ पे fn इज इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू g ऑफ n। तो इस पॉइंट से वी हैव टू कंसिडर द अप पार्ट, ठीक है? तो ऊपर वाला पार्ट, तो नीचे fn जाएगा, ऊपर gn जाएगा। तो बिग O इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बिग ओ हमको अपर बाउंड देता है, लीस्ट अपर बाउंड देता है, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि दिस इज इट, इससे ज़्यादा मेरा फंक्शन कभी ग्रो करेगा ही नहीं। अगर इसका लीनियर ग्रोथ है तो लीनियर ग्रोथ है, अगर इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अगर इसका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और सीड में वो चेंज होके वो कांस्टेंट से लीनियर बन जा रहा है, ठीक है। सो बिग ओ इज द वर्स्ट केस ऑफ फाइंडिंग आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पर बिग ओ में भी बेस्ट केसेस हैं, बिग ओ में भी वर्स्ट केसेस। तो बेस्ट केस ऑफ बिग ओ इज व्हाट? बिग ओ ऑफ 1, जहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट है। और सबसे वर्स्ट केस जो सिनेरियो हम देखते हैं वो है बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, बहुत ज़्यादा है वो, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। वी नॉट कंसिडर दोज ऑल थिंग, हम इसीलिए लेसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपने कोड को एफिशिएंट करके लिखना चाहते हैं। तो आपको इस कोड से ये पता चल चुका होगा कि हम एक सेम क्वेश्चन, कैलकुलेटिंग द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर टेकिंग अ यूजर इनपुट, हम उसको बेटर वे में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n से रिड्यूस होके कांस्टेंट हो जाती है, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन कोडिंग। हमको अपना कोड एफिशिएंट करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वो हम कैसे करेंगे? टू राइट बाय राइटिंग द कोड मोर एफिशिएंटली। तो कोड को एफिशिएंटली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये कोड एफिशिएंट है? ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। So this is why data structure is important. तो आज हमने देखा कि what is big O, right? What are the big O notations? Now, after this, we are going to of course look into some more examples from big O in the next class. और कुछ guidelines, as certain rule books are there that you have to follow for actually finding out the big O of certain function without calculation, without doing anything. तो ये सारी चीज़ें we'll see it in the next class. And of course, if you want to prepare yourself for the placement, because this is high time that you get yourself back into that zone, don't forget to download the Campus Monk app. The link will be available in the description box. It's available on Play Store and App Store. So go check out. There are a lot of mock tests and lots of questions are there which will help you develop your skills. I will see you next class, another topic of data structure with some examples from Big O, some asymptotic notations, and I hope you understand this completely. Until the next class, keep studying, keep revising. Bye bye. Thank you.